آج جمیل الرحمان صاحب قبلہ کی تقریر سماعت کی اور شاعر ہندوستان حضرت علامہ مولانا غلام احمد کی نعت سماعت کی اور خطیب و امام جامع مسجد جواب اٹا موجودانی حضرت علامہ مولانا حامد انجم عبیدی سے بھی نعت سماعت کی۔ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، اگر تقریر سننے کے موڈ میں ہیں، آپ کے دل میں نبی کی محبت ہے، امام حسن و امام حسین سے محبت کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تو اچھا ہے۔ تھوڑا سا آگے حضرات اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد۔ حضرات، شاعر فرماتے ہیں کہ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، اور نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ سانس کب رک جائے گی کسی کو نہیں پتا، اس لیے کہتے ہیں کہ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، اور نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ ارے پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، زندگی میں عمل ہو تو کفن میں چین، زندگی میں عمل ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت مقدسہ کو اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کی دو قسم ہیں، ایک ہے موت اضطراری، ایک ہے موت اختیاری۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ادھر ایک بندہ انتقال کر گئے ہیں، ادھر بیل ذبح ہو رہا ہے۔ ہمیں موت کا ڈر، موت کا خوف اس دن بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، جبکہ 3 دن تک اس کے گھر میں ہانڈی بھی چرانا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اچھی طرح سے نیلا دھلا کر کفن پہناتے ہیں، اس کے بعد جنازہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد میت کو دفنا کر آ جاتے ہیں۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں چاہے باپ انتقال ہو، چاہے ماں گزر گئی ہو، سرکار فرماتے ہیں کہ قبر سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ قبر کے پاس اتنا دیر تک بیٹھے رہنا ضروری ہے کہ ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا جائے، ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا جائے، اتنا دیر تک ماں باپ کے قبر کے پاس بیٹھے رہو اور یہ پڑھتے رہو من رب کا ما دینوں کا متنتا تقول فی حق هذا الرجل، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب قبرستان سے گزرا کرو تو السلام علیکم یا اہل القبور، ہمارا عقیدہ ہے نا، السلام علیکم یا اہل القبور پڑھو۔ تو حضرات محترم، قبر کے نیچے اگرچہ آپ کے باپ ہے اور بیٹا اوپر کہہ رہا ہے من ربوں کا، ہو سکتا ہے کہ ان کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ جائے اور بآسانی جواب دینے میں اس کو آسان ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہو۔ تو کتنی دیر تک بیٹھا رہنا چاہیے؟ ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیں، کم سے کم ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو 2 سے 2.5 گھنٹہ لگے گا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بس جلدی، کوئی دعا بھی نہیں مانگتے، امام صاحب جلدی سے کیجیے اور فوراً گھر بھاگتے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے،
ابھی میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا تو ادھر میلاد ہو رہا ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جہاں بھی نبی کی باتیں ہوتی ہیں وہاں خود ہمارے نبی حاضر ہوتے ہیں. لیکن آج ہماری مائیں بہنیں اتنی بے حیا ہو چکی ہے, اتنی بے پردہ ہو چکی ہے کہ کیا بتاؤں. ادھر میلاد ہو رہا ہے, ادھر گیت گائے جا رہے ہیں. میری ماں بہنوں برا مت ماننا, عورتوں کا مقام اتنا ہے کہ عورتوں نے نبیوں کو جنم دیا, عورتوں کا مقام اتنا ہے کہ عورتوں نے رسولوں کو جنم دیا, عورتوں کا مقام اتنا ہے کہ عورتوں نے غوث کو جنم دیا, عورتوں کا مقام اتنا ہے کہ عورتوں نے خواجہ کو جنم دیا, عورتوں کا مقام اتنا ہے کہ عورتوں نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو. عورتوں کا مقام بتاؤ. آج تک کعبہ کسی مرد کے لیے آگے نہیں بڑھا, کعبہ کسی کے لیے نہیں جھکا, مگر ایک عورت تھی جس کے لیے کعبہ بھی اس عورت کے لیے آگے بڑھ جاتی ہے. عورتوں کا مقام سنو. اللہ اکبر. ایک حجین حج کرنے کے لیے جا رہی ہے جن کا نام ہے رابعہ بصر. سمجھتے ہیں؟ وہ حج کرنے کے لیے جا رہی ہے. ایک قدم چلتی ہے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتی ہے, ایک قدم چلتی ہے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتی ہے. وہ جا رہی ہے, نفل نماز پڑھتی بھی جا رہی ہے حج کرنے کے لیے. حضرت رابعہ بصریہ اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ کو رحم آ گیا. رب تبارک و تعالیٰ نے کعبے سے فرمایا, او کعبے آج تک تو نے کسی کی طواف نہیں کی ہے, مگر سن لے جتنے لوگ آتے ہیں سب تیرے طواف کرتے ہیں, مگر میری ایک مقبول بندی ایک حجین آ رہی ہے, جا آگے بڑھ کر اس کی طواف کر لے, اس کی عظمت کر, اس کی سواگت کر لے. لیکن ہمارے آپ کی ماں بہنوں کی طرح نہیں. وہ ایک قدم چلتی تھی 2 رکعت نفل نماز پڑھتی تھی. آج ہماری ماں بہنوں کا حال یہ ہے کہ ایک قدم چلتی ہے تو 1 درجن گالیاں دیتے. وہ ایک قدم چلتی تھی تو 2 رکعت نفل نماز پڑھتی تھی, اور ہماری ماں بہنیں ایک قدم چلتی ہے تو درجنوں گانے بکتے تھے. یہ گھمنڈ مت کرنا کہ ہمارا مقام ہے. عورتوں نے نمرودوں کو بھی جنم دیا, فرعونوں کو بھی جنم دیا, لیکن یہ علم کی کمی ہے. جانتے ہو قبر کے عذاب کے بارے میں معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا, اور جبریل امین ذرا یہ تو بتا دے کہ جہنم کی سب سے ہلکی عذاب کیا ہے. تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا بتاؤں جہنم کی سب سے ہلکی عذاب یہ ہے کہ جہنمیوں کے پیر میں آگ کا جوتا رکھ دیا جائے گا. اس کی گرماہٹ کی وجہ سے اس کا دماغ پگھل پگھل کر ناک اور کان سے جھر جھر کر ٹپک ٹپک کر گرتا جائے. معلوم ہے میری ماں بہنوں, ادھر میلاد ہو رہا ہے, ادھر گیتا گا رہی ہو, کلمہ یاد ہے, نعت یاد ہے. اگر اسی ٹائم نعت پڑھتے, ہاں اسی انداز میں نعت پڑھا کرو. وہ نہیں کرے گی, کچھ معلوم نہیں ہے. عورتوں کو بگاڑا کس نے؟ مردوں نے. مردوں نے عورتوں کو بگاڑا کرا. آج 20,000 کی ٹی وی پردے میں ہے, اور لاکھ روپے کی بیوی بے پردہ. 20,000 کی ٹی وی پر مخمل کا پردہ, اور لاکھ روپے کی بیوی کھیت میں. 20,000 کی ٹی وی پردے میں, 20,000 کی ٹی وی پر مخمل کا پردہ, اور لاکھ روپے کی بیوی لپسٹک لگا کے تو خالی بازار میں گھوم رہے. لپ ریک لپ ریک لپ ریک گھوم رہے. اللہ اکبر. کیا بتاؤ میرے دوستوں بزرگوں, سرکار نے فرمایا کہ میں نے 2 طرح کی عورتوں کو جہنم میں دیکھا. میں نے 2 طرح کی عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا وہ عورت ابھی موجود ہے؟ سرکار فرماتے ہیں, وہ عورت کو میں نہیں دیکھوں گا, ان عورتوں کو میں نہیں دیکھوں گا. میں نے جہنم میں دیکھا پر وہ ابھی نہیں, بعد میں آئے گی. تو صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان کی پہچان بتا دیجئے, ان کی پہچان بتا دیجئے, وہ کس طرح سے ہوگی, کس شکل صورت کی ہوگی.
सरकार फरमाते हो, ओ साहबी सुनना चाहते हो तो सुनो सुनो, अल्लाह अकबर। सरकार फरमाते हैं उनमें से एक वो औरत होगी जो पतला और बारीक लिबास पहनेगी और मर्दों का शक्ल इख्तियार करेगी, मर्दों की तरफ बाल कटवा कर घूमेगी, जीन्स टी शर्ट पहनकर घूमेगी। ऐसी औरतों को देखो तो समझ लेना कि वह औरत जहन्नमी है। ऐसी औरतों को मैंने जहन्नम में दी। अल्लाह अकबर। तो साहबा किराम अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो दूसरी औरत कौन सी होगी? सरकार फरमाते हैं आज अगर किसी औरत के सर पर बाल हो तो बड़ा फख्र के साथ वो बालों को खोल कर घूमती हुई नजर आती है कि मेरे सर पर बाल है, देखो। हज़रात ये सब जो कुछ हो रहा है टीवी सीरियल फिल्म मोबाइल की वजह से हो रहा है। सरकार फरमाते हैं कि अगर किसी लड़की या किसी औरत के सर पर बाल हो और वो अपने चोटियों को अपने सर के बालों को ऊंट के कोहान की तरह ऊपर ले जाकर बांध दे। ऊंट के कोहान, अब चोटी किसको कहते हैं? खोपा कहते हैं ना हमारी तरफ, यानी कि खोपाना गुड़गाना ऊपर बांधना जैसे हीरोइन फिल्म लग देखे हीरोइन लग खोपाना ले आना ऊपर दाना बांधना फिर चर्चा। तो सरकार फरमाते हैं अगर किसी औरत के सर पर बाल हो और वो अपने चोटियों को सर के ऊपर ले जाकर ऊंट के कोहान की तरह बांध दे और कमर मटक मटक कर चले तो समझ लो ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। औरत के लिए अगर कोई बरगुज़ीदा शख्स है तो उनके शौहर है। औरत की जन्नत शौहर के कदमों तले है और शौहर की जन्नत माँ बाप के कदमों तले। खैर मैं अर्ज कर रहा था आज हमारी औरतें बेहया बेपर्दा क्यों हुई है? किसने उन्हें बेपर्दा किया? हम ही लोगों ने किया। आज हमारी माँ बहनों के हाथों में मोबाइल, इसी मोबाइल की वजह से समाज में आग लगी है। मैं पूछना चाहता हूँ किस औरत के कितनी फैक्ट्रियां चल रही है, कितनी गाड़ियां चल रही है कि उनकी बसें जल जाएगी, कि उनकी फैक्ट्रियों में आग लग जाएगी। और मेरे काबिल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों मेरी बात को गौर से सुनना। ये यहूदी व नसरानियों की चाल थी कि मुसलमानों के घरों से दीनी किताबों को निकाल दिया जाए, मुसलमानों के घरों से इस्लाम को निकाल दिया जाए, एक ऐसी चीज पेश कर दिया जाए तो रातों दिन वो मशगूल रहे जिस चीज में। अल्लाह अकबर। यहूदी नसरानियों की चाल रात मोहतरम इस कदर वो कामयाब हुए कि उन लोगों ने जो सोचा आज वही हो रहा है कि आज हम अपने बेटों के हाथों में मोबाइल दे दिया है। अल्लाह अकबर। यही मोबाइल है जिसकी वजह से आज हमारी माँ बहन, चाहे आपकी बेटी हो चाहे मेरी बेटी हो, रात मोहतरम कोई लड़की बंबई जाती नहीं है, कोई लड़की गोवा नहीं गई, कोई लड़की इंग्लैंड नहीं गई, कोई लड़की बंबई नहीं गई। तो फिर बंबई का कल्चर उस लड़की के पास आया कैसे? इंग्लैंड का तौर तरीका उस लड़की के पास आया कैसे? जब घर से निकलकर बाहर नहीं गई तो पता चला, मालूम हुआ यही मोबाइल है जिसकी वजह से आज समाज में आग लगी है कि मोबाइल में फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप में लड़कियां देखती है, उसी तरह फैशन करती है, उसी तरह बाल कटवाती है। छोटे छोटे बच्चे आज कलार चढ़ाते हैं। ये कहां से आया? हज़रात मोहतरम इसी मोबाइल की वजह से समाज के अंदर आग लगी है। मैं पूछना चाहता हूँ काश आज अगर हमारे माँ बहनों को हम दीनी किताबों को पढ़वा देते, कुरान को पढ़वा देते, कानून शरीयत को पढ़वा देते, बारे शरीयत पढ़वा देते, हजरत फातिमा की सीरत को पढ़ लेती तो फिर आज दिन आदि नहीं होती, पूरे आज दिन के कपड़े पहनती। अगर हम हजरत खदीजा की सीरत पढ़वा देते अपनी माँ बहनों को तो कभी बेहया नहीं होती। अगर माँ आयशा की सीरत पढ़वा देते तो औरतें कभी बेपर्दा नहीं होती। काश आज अगर हम अपनी माँ बहनों को कुरान पढ़वा देते और वो पढ़ लेती तो ऐसी औरत जब घर में रहती, ऐसी लड़की जब घर में रहती, कुरान की तिलावत करती तो अल्लाह की रहमत बरसती, और जब शादी होती तो नियामत बरसती, और जब माँ बनती ऐसी औरत के कदमों के नीचे जन्नत बनती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुझे लगा सरजमीन चौवा बेटा, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलक आला
हजरत जिंदा बात वक्त बहुत हो। सुभान अल्लाह वाह तो पता चला मालूम हुआ कि इल्म नहीं है, जिसकी वजह से आज हमारी माँ बहनें बेहया हो गई। हजरात, मैंने क्या अर्ज किया कि मौत की दो किस्म है, मौत इस्तरारी, मौत इख्तियारी। मौत इस्तरारी जैसा कि आज हमारी कि हमें हाथ भी सीधे करने का मौका नहीं मिलता कि मौत आ जाती है, पैर भी सीधे करने का मौका नहीं मिलता कि मौत आ जाती है, कलमा भी पढ़ने को नसीब नहीं होता कि मौत आ जाती है। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, मैं पूछना चाहता हूँ नौजवानों से कि जितना टाइम तुम मोबाइल में, फेसबुक में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में गुजारते हो, काश उतना टाइम नबी के कलमा पढ़ लेते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में गुजार देते। अल्लाह अकबर। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा तुम्हारी जुबान में रट जाती, और जब इंसान के जुबान में जो बात रट जाती है वही बात हमेशा निकलती रहती है। तो जब तुम्हारी जुबान में कलमा रटा हुआ होगा तो जब मरते तो कलमा पढ़ते हुए मरते, और कलमा पढ़ते हुए मरते तो कब्र में जरूर ये कहते हुए जाते कि लहद में इश्के रुके, शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लहद में इश्के रुके, शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। उतना टाइम उस व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब में गुजारते हो, अगर कलमा पढ़ते हुए गुजारते तो जुबान में वो बात रट जाती है। और इंसान की जुबान में अगर गालियां देता है ना, मरते वक्त भी गालियां ही निकलती है। अगर कलमा पढ़ता रहता है ना तो मरने के वक्त भी कलमा निकले। अगर मौत, अल्लाह अकबर, रूह निकलने के वक्त इंसान को इतनी तकलीफ होती है कि जीतो जी कभी इतनी तकलीफ का एहसास भी नहीं। मलकुल मौत के साथ दो फरिश्तों की जमात आती है रूह निकालने की, एक जहन्नमी एक जन्नती। जिसका जैसा अमल होता है उसी हिसाब से उसकी रूह निकाली जाती है, उसी हिसाब से उसकी रूह निकाली जाती है। अच्छा, जब हम गाय बैल को ज़बह करते हैं तो वो तड़पते हैं, लेकिन इंसान कभी हाथ पांव ऐसा करके मारता नहीं मारता। क्यों? इसलिए कि फरिश्ते पहले उनकी ताकत छीन लेते, उनकी जुबान की बोलती को बंद कर देते, वरना रूह निकलने के वक्त इतनी तकलीफ होती कि वो अगर चीखते चिल्लाते तड़पते तो लोग उसके पास बैठे नहीं रह सकते, लोग उसके करीब नहीं रहने पाते, जंगलों में भटक कर फिरते, फिर कहते और 5 वक्त नमाज की पाबंदी करते। अल्लाह अकबर। रूह को निकलने के वक्त इतनी तकलीफ होती है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हजरात मोहतरम, मैं आप हजरात को एक मिसाल देकर बता रहा हूँ। जैसा कि किसी तख्त पर या बेर के पेड़ पर या बबूल के कांटे पर एक सफेद कपड़े को आप हजरात मोहतरम भिगो कर उस पर गिरा दो, उसको खींचो सूते कपड़े को तो उसका चिथरा चिथरा हो जाएगा। इसी तरह से रूह को निकाली जाती है, इसी तरह से रूह को निकाली जाती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अच्छा हम क्या करते हैं, मैयत को दफना कर आ जाते हैं, उसके बाद हो सकता है अगर किसी का बच्चा आलिम है, उलमा है तो जाते हैं कब्र में, लेकिन सरकार फरमाते हैं जिसके माँ बाप गुजर गए और वो हर जुमे को माँ बाप के कब्र की ज़ियारत करे, सूरा यासीन शरीफ की तिलावत, तो जितने हुरूफ सूरा यासीन शरीफ में है उतने ही अन्नामाए अमाल में नेकियां लिख दी जाए। लेकिन आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत करें, नहीं है हमारे पास टाइम। बहरहाल मेरे दोस्तों को मरना सबको, मैं क्या कर रहा था कि कब्र के अजाब बयान करते कब्र के अजाब के बारे में मालूम है। ये शक्ल जो है हमारा मालूम है ना, ये मोहम्मदी शक्ल है, ये शक्ल हमारा मोहम्मदी, ये जो नूर दिख रहे हैं ना ये मोहम्मदी शक्ल है। लेकिन जहन्नम में जाने से पहले इस शक्ल को बिगाड़ दिया जाए। ये शक्ल जहन्नम में जाने का वक्त नहीं होगा, शक्ल को बिगाड़ दिया जाएगा। ओहद पहाड़ के जैसा एक दांत होगा। ओहद पहाड़ की लंबाई 15 किलोमीटर की, एक दांत 15 किलोमीटर का, तो 32 दांत और 32 दांत का मुंह कितना बड़ा होगा।
कितना बड़ा होगा, और 70 गज चमड़े को मोटा कर दिया जाएगा आजाब की सख्ती के लिए, ज्यादा आजाब पाने के लिए 70 गज चमड़े को मोटा कर दिया जाएगा। 70 साल तक वो चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, प्यास के मारे हल्क सूख गया हो, हल्क सूख जाएगा। 70 साल तक वो चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा कि मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो। आज बड़े मजे से हम बिसलेरी पीते हैं। पहले कुएं का पानी अच्छा लगता था, अब नल का पानी भी अच्छा नहीं लगता। अब जिसके पास पैसा है बिसलेरी लाओ, बिसलेरी लाओ। लेकिन सुनो सुनिए जन्नत के मुसलमान भाइयों, वह इंसान वो जहन्नमी 70 साल तक चीखता रहेगा तो बिसलेरी पेश नहीं किया जाएगा, कोका कोला पेश नहीं किया जाएगा, थम्स अप पेश नहीं किया जाएगा, पेप्सी का बोतल पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि कुरान कहता है माए हमीम यानी खोलता हुआ गर्म पानी पेश कर दिया जाएगा। और वो गर्म पानी जब उसके हाथों में ले जाकर रखा जाएगा, उसकी भाप की वजह से अल्लाह अकबर उसके चेहरे के चमड़े जो है झड़कर उस पानी में गिर जाएगा, वही पानी उसको पिलाया जाएगा। सुभान अल्लाह। समझते हैं? खुदा का खौफ दिल में बसाइए, मौत का डर पैदा कीजिए, उलमा के पास जाकर बैठिए। अच्छा, जितनी मेरी माए बहने हैं, गीत गाने के लिए शायद इनमें से पूछ लो, कोई ना कोई तो गई थी, कब्र के सवाल जवाब याद है? बताओ किसी को मालूम है कि कब्र में क्या पूछा जाएगा? कब्र में 3 सवाल पूछे जाते हैं, सबको मालूम है, लेकिन मैं भी बता देता हूं। और सुन्नी इन 3 सवालों के अंदर मैं ये भी साबित करूंगा कि जन्नत में कौन जाए, जन्नत में कौन जाए। सवाल सब बयान करते हैं, 3 सवाल पूछा जाएगा, मैं ये भी बयान करूंगा कि जन्नत में कौन जाए। पहला सवाल क्या है? मन रब्बों का, मेरा रब कौन है? दूसरा सवाल क्या है? माँ दीनों का। तीसरा सवाल क्या? माँ कौन का तकल्लु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। ये 3 सवाल। अच्छा, पहला सवाल है मन रब्बों का, मेरा रब अल्लाह। किसी मुशरिक ने भी अगर कह दिया, उसकी जुबान में तो आएगा नहीं, तो मुशरिक है, लेकिन कह दिया कि मेरा रब खुदा है, मिसाल के तौर पर, आएगा तो नहीं, तो दूसरे सवाल में कहां जाएगा? दूसरे सवाल में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दूसरे सवाल में कहां जाएगा? फंस जाएगा। हमारा अकीदा क्या है कि नबी कब्र में आएंगे, हमारा अकीदा नबी कब्र में आएंगे, और जिनका अकीदा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तब क्या होगा? तो सुनिए, तीनों सवालों का जवाब देते हैं। मन रब का, मेरा रब अल्लाह, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। मुशरिक ने अगर कह दिया कहा हमारा रब्बी अल्लाह, चल भाई सही है, पहला सवाल तो कह दिया तू, अब दूसरे सवाल माँ दीनों का, अब कहां से लाएगा? उसका तो दिन है नहीं, है उसका दिन है? कोई दिन है? सबसे अच्छा दिन इस्लाम, दीन अल इस्लाम, सबसे अच्छा दिन दीन इस्लाम। तो दूसरे सवाल में मुशरिक छट गए, कट गए, निकल गए। अब जो लोग कहता है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी हमारी तरह है, नबी हमारे बड़े भाई है, नबी हम जैसा बशर है, नबी हमारी मिस्ल है, तो सुनो मेरा कहना है, हमारा अकीदा यह है कि तीसरे सवाल में वो भी नहीं बच पाएगा, उसे भी छाड़ दिया जाएगा। तीसरा सवाल आ रहा है, माँ कुंता तक़ुलु फी हक़्क़ि अगर रजुल, ये शख्स जो तुम्हारे सामने है, इसके बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? अब जिनका अकीदा यह है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जिनका अकीदा यह है कि नबी हमारी तरह बशर है, तो क्या वो देख पाएगा? देख पाएगा? जब उससे पूछा जाएगा इस शख्स के बारे में तुम्हें क्या ख्याल है, इसको पहचान तो वो तो दुनिया में जीते जी नहीं पहचान सकता, तो कब्र में जाकर क्या पहचानेगा? लेकिन वही सवाल जब एक आशिक रसूल से पूछा जाएगा, ओ बंदे मैं कुंता तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है, तो वो बंदा पुकार पुकार कर कहेगा, ओ फरिश्ते मुझसे पूछो कि इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? अरे जिसका कलमा मैंने रातों दिन पढ़ता रहा, जिसकी खातिर, जिसकी रजा के लिए मैंने कलमा पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ा, कि भी मैंने देखा नहीं, 60-70 साल की जिंदगी गुजार दी नमाज में, 60-70 साल की जिंदगी गुजार दी दुरूद शरीफ में, 60-70 साल की
زندگی گزار دی کلمہ پڑھنے میں، آج مجھ سے پوچھتے ہو کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ارے یہ وہی شخص ہے جس کا کلمہ میں نے رات و دن پڑھا کرتا تھا۔ یہ آقا نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت اشن چہلم مولانا کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ہم سنی جنت